محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کانگریس حکومت کی جانب سے مزید 2 گارنٹیز پر عمل آوری کے لیے سی ایم ریونت ریڈی نے جاری کیا احکامات۔ وہ ریاست کے مستحق گھرانوں کے لیے 200 یونٹ مفت برقی و 500 روپے میں گیس سلنڈرز کی فراہمی کا حیدرآباد سیکریٹریٹ سے کیا آغاز۔ مدرسہ عربیہ دارالعلوم کنداکرتی کے طالب علم نے ایک ہی نشست میں سنائی مکمل خوراک۔ مدرسے کی جانب سے کی گئی نوجوان حافظ کی ہمت افزائی۔ مودی حکومت کی جانب سے غربا کی ترقی کے لیے فراہم کی جانے والی اسکیمات کی شعور بیداری کی جائے۔ وجے سنکلپ یاترا سے بی جے پی قومی نائب صدر ڈی کے ارون کو ایم پی الوین کا خطاب۔ دارالعلوم بچکندہ میں 8 طلباء کا تکمیل حفظ، 11 سال میں 32 طلباء کا حفظ ہونا مثالی خدمات کی علامت۔ کسانوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خدمات انجام دیے جائے۔ ڈچپلی پرائمری کوآپریٹو سوسائٹی کے انتخابات سے رورل رکن اسمبلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی کا خطاب۔ پی ایس سی ایس چیئرمین کی حیثیت سے رام چندر گائیکواڑ منتخب۔ ضلع میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل، 1 منٹ کی بھی تاخیر ناقابل برداشت، ڈی آئی ای او کا اظہار۔ طلباء محنت و مشقت کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ ٹائیکوانڈو تربیتی تقریب سے ضلع جج سنیتا کنچالا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ مدرسہ عربیہ دارالعلوم کنداکرتی کے طالب علم نے ایک ہی نشست میں سنائی مکمل قرآن۔ مدرسے کی جانب سے کی گئی نوجوان حافظ کی ہمت افزائی۔ رینجل منڈل کے کنداکرتی گاؤں میں موجود مدرسہ عربیہ دارالعلوم کے ایک طالب علم نے ایک دن میں ایک ہی نشست میں مکمل قرآن شریف دہرایا۔ عبدالاحد ولد توقیر خان جو اسی مدرسے میں زیر تعلیم تھے اور آج اپنے امتحان کے موقع پر صبح بعد نماز فجر سے ہی تلاوت قرآن شریف کا آغاز کیا اور صرف ایک ہی نشست میں قرآن شریف کو مکمل سنایا۔ اس موقع پر مدرسے کے صدر مدرس مرزا افضل بیگ کے علاوہ مدرسے کے علماء کرام، طلباء کے رشتہ دار و گاؤں کے معزز افراد نے شرکت کرتے ہوئے نوجوان حافظ کی ہمت افزائی کی اور انہیں ایک سائیکل بھی بطور تحفہ فراہم کی۔ دارالعلوم بچکندہ میں 8 طلباء کا تکمیل حفظ، 11 سال میں 32 طلباء کا حفظ ہونا مثالی خدمات کی علامت۔ مولانا مفتی عبدالمبین قاسمی امام و خطیب مسجد فرحت النساء نے طلباء و سرپرستوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم اور عظمت قرآن کے حوالے سے شعور بیدار کیا۔ مفتی عبدالماجد قاسمی امام و خطیب مسجد عابدہ نظام آباد نے کہا کہ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ ہر مسلمان کو قرآن سے وابستگی کا پیغام دیا۔ حافظ
लई खान सदर जमीयत उलमा ने तमाम तलबा को आखिरी रुकू पढ़ाकर तकमील हिफ्ज़ पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कलीदी खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमान बच्चों को कुरान की अजमत व अहमियत से वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल के शेर का हवाला देते हुए कहा कि जिस कौम ने कुरान से अपने आप को वाबस्ता किया वह तरक्यात की मनाजिल को पा लिया और जिन्होंने कुरान से दूरी अख्तियार की वो जलील व रुसवा हुए। वो मौजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक खूरा होकर। इसके अलावा मौलाना ने कहा कि आज हमारे समाज व माशरे में दुनियावी तालीम और डिग्रियों की अहमियत व वाक़ियत तो पाई जाती है, लेकिन रुए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की अज़मत से मुसलमान नाआशना है। यही वजह है कि हमारे बच्चे स्कूलों में आला नंबरात से कामयाब होते हैं तो इनकी हिम्मत अफजाई के लिए बड़े बड़े फंक्शन रखे जाते हैं, मगर अफसोस के कोई हाफिज कुरान बनता है तो इसके लिए कोई मुबारकबादी भी देने को तैयार नहीं होता। अफसोस तो इस बात का होता है कि फना होने वाली इल्म के उसूल के लिए हज़ारों की दौलत लुटाते और बच्चों को अफसर के लिए तालीम देते, मगर इल्म दीन व तालीम कुरान पर आज कोई हौसला दिलाने वाला नहीं है। खुदारा अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद से जोड़िए और जिन बच्चों को अल्लाह ने अपनी मुबारक किताब और मुक़द्दस कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है, इनको दीनी मदारिस को कदर की निगाहों से देखें। मौलाना रिजवान क़ासमी नाज़िम दारुल बचकुंदा ने मदरसे की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया और माविनीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, हाफिज फयाज मखदूम मोहिउद्दीन ने मदरसे के माहौल व हुस्न इंतजाम का जायजा लिया और हर चीज़ की सलीका मंदी पर नाज़िम मदरसा मौलाना रिजवान क़ासमी और सातिज़ा कराम बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद महबूब क़ासमी और मौलाना मोहम्मद रब्बानी क़ासमी की मेहनतों और कुर्बानियों को सराहा। मौलाना अब्दुल क़दीर उस्सामी ने बेहतरीन तरन्नुम के साथ नात नबी का नजराना पेश किया। मौलाना अजमत सईद सदर शरिया बोर्ड, मौलाना शजाउद्दीन तलहा, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अशरफ अली, हाफिज अमजद ने इंतजामिया और तलबा व सातिज़ा ने सरपरस्तों को मुबारकबाद दी। नादानी है और ये धोखा है। कुरान जिंदगी के हर शोबे के लिए और एक एक लम्हे के लिए, हमारे और आपके लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहबर है। बीमार है तो उसके लिए शिफा, हालात का मारा हुआ है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उसका इलाज रखा है। लेकिन शर्त ये है दोस्तों कि हम दिल और जान से कुरान की अजमत को समझने वाले तो बने। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि इन हुफ़ाज़े किराम की शालपोशी और गुलपोशी के अंदर कितने सारे लोग शरीक हो रहे हैं कि हिम्मत अफजाई के लिए, कि हौसला अफजाई के लिए, और ये होना चाहिए। मैं तो बार-बार कहा करता हूँ जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है कि भाई आपका बच्चा डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, इंजीनियर बनता है, या कुछ न सही 10th क्लास पास कर लेता है तो आपके घरानों में खुशियाँ मनाई जाती है। बच्चे को ऑफर्स दिए जाते हैं कि अगर ये पास कर लोगे तो गाड़ी दिलाई जाएगी, ये पास कर लोगे तो साइकिल वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑफर्स हम अपने बच्चों को करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्या कुरान मजीद ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके लिए कोई भी हम अपने बच्चों को ऑफर न करें? हम अपने बच्चों को उनके दिलों के अंदर अजमत पैदा करने के लिए बोलना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना चाहिए कि बेटा अगर तुमने एक तख्ती से लेकर 25 तख्ती तक मुकम्मल कर लिया और 1 महीने में तुमने अच्छा अपने उस्ताद को सुना दिया और कामयाब हो गए तो तुम्हारे लिए यह ऑफर रहेगा। तुमने नाज़िल कुरान खत्म कर लिया तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, आपने तकमील हिफ्ज़ कर लिया तो आपके यूं प्रोग्राम किया जाएगा, आपके खानदान वालों को बुलाया जाएगा। बुलाना चाहिए। हम और आप दुनिया की बला चीजों के अंदर, बेकार और गैर जरूरी चीजों के अंदर अपनी दौलत को पानी की तरह ख़वातीन की दीनी तरबियत के लिए 2 मार्च बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे से 8 बजे तक मदरसा माज बिन जबल बोधन की जानिब से खुसूसी जलसे का एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। 2 मार्च को शाम 5 बजे मदरसा माज बिन जबल बोधन की जानिब से एक अजीम शान इज्तिमा बराए ख़वातीन अमल में लाया जा रहा है जो 5 बजे ता 8 बजे तक मुनाकिद होगा। इस मौके पर ख़वातीन की आमद रफ्त के लिए मुफ्त ऑटोस का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस जलसे आम में मशहूर मारूफ आलिम दीन अब्दुल सबूर व ज़िले सदर जमीयत उलमा मौलाना समीउल्लाह शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। आज एक जायज़ा इजलास का एहतमाम अमल में लाया गया था जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफियत हासिल करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बोधन जिला निज़ामाबाद में 2 मार्च को हफ्ते के दिन शाम में 5 बजे से 8 बजे तक अज़ीमुश्शान पैमाने पर ख़वातीन का इज्तिमा मुनाक़िद होने जा रहा है।
اس اجتماع میں صدر اجلاس حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد تشریف لائیں گے اور مہمان خصوصی ماہر تعلیم شیریں بیاں وائز حضرت مولانا مفتی عبدالصبور قاسمی صاحب فاؤنڈیشن ہیرا ماڈل اسکول اور صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ظہیر آباد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع سنگاریڈی کا قیمتی بیان ہوگا۔ خواتین کے اس اجتماع میں لانے لے جانے کے لیے ہر محلے سے اور بودن کے قریب ہر دیہات سے آٹوؤں کی فری سروس کا انتظام مدرسے کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور تمام خواتین کے لیے اجتماع ختم ہونے کے بعد مدرسے میں طعام کی دعوت بھی ہے۔ ہفتے کے دن 5 بجے معاذ بن جبل انگلش میڈیم اسکول میں خواتین کے لیے عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے جانماز کا انتظام ہے۔ تمام مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ خواتین کی اس اجتماع میں تشریف لائیں۔ مرد حضرات کے لیے بیٹھنے کا انتظام علیحدہ رہے گا۔ اس زمانے کے اندر مرد حضرات کے لیے دینی باتوں کو سننے کے بہت سارے موقع مسجد کے اندر اجتماع میں جلسے میں ملتے ہیں، لیکن خواتین کو دین کی بات سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اس وجہ سے مدرسہ معاذ بن جبل میں 2 مارچ کو ہفتے کے دن 5 بجے سے شام میں 8 بجے تک خواتین کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ دین کی اور دینی تعلیم کی اور موجودہ زمانے میں دینی ماحول میں عصری تعلیم کی اہمیت کے اوپر بیان ہوگا اور مدرسے کے طلباء کا اور اسکول کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اس اجتماع میں 5 بجے پیش کیا جائے گا اور مدرسے کو سالانہ تعطیلات 1.5 مہینے کی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 3 مارچ سے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک مدرسے میں ہاف ٹائم مدرسے کی حفظی تعلیم جاری رہے گی۔ 20 رمضان تک تمام بودن کی عوام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر شہری تعلیم کے لیے رمضان کے اندر بھی روانہ فرمائیں اور خاص طور پر اس اجتماع میں آنے کی فکر کریں۔ آج خواتین کے اجتماع کے تعلق سے مشورہ رکھا گیا ہے۔ اس مشورے میں ہمارے کریم بھائی نوجوان، غوث بھائی، اظہر بھائی ڈویژن نمبر 12 پینٹر کالونی میں عوام کے لیے فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ۔ عوام کی خدمت ہی میرا نصب العین، محمد ربانی قائد کانگریس کا بیان۔ شہر کے گنجان آبادی والے علاقے و ڈویژن نمبر 12 پینٹر کالونی، نیو وینگل راؤ کالونی میں حرکاتی سوشل ورکر زیر صدر قومی یکجہتی تنظیم و ضلع کانگریس ڈیلیگیٹ محمد ربانی کی قیادت میں عوام کے لیے فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ رکھا گیا تھا۔ اس ہیلتھ چیک اپ کیمپ میں ماہر امراض ڈاکٹر محمد اعظم اور محمد الماس و خاتون ڈاکٹرز و طبی عملے کی نگرانی میں مختلف وبائی و معتدی امراض کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، تھائرائیڈ، معدہ و جگر کے علاوہ گردوں کے امراض کی تشخیص کی گئی۔ اس موقع پر محمد ربانی نے علاقے پینٹر کالونی، نیو وینگل راؤ کالونی، دھرمپوری ہلز، اسد بابا نگر و ان علاقوں کے قریب و جوار اور دیگر علاقوں کے عوام سے اس فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کانگریس گورنمنٹ کی جانب سے ریونت ریڈی صاحب اور عبدل صاحب کی جانب سے ہم لوگوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی تھی کہ فری ہیلتھ کیمپ لگایا جائے، تو اس وجہ سے ڈویژن نمبر 12 میں آج یہ پروگرام لگایا گیا ہے فری ہیلتھ کیمپ کا، جس میں تقریباً 55 ٹیسٹ کرنے والے ہیں، جس میں جرنل 16 ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو ڈویژن نمبر 12 ہے تقریباً سلم ایریا ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے، حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کانگریس گورنمنٹ سے کہ ہمارے اس بستی کو ہر وہ چیز میں پہلے ہم لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہر وہ چیز میں پیچھے ہے۔ مارچ 2 تاریخ کو 10,000 خواتین کو خود کی دفاع کی تربیت کے تحت انعقاد عمل میں لائے جانے والے پروگرام کا ضلع جا سنیتا کنچالا نے کیا افتتاح۔
शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में बरोज़ 26 तारीख को सुबह के अवलिन सातों में खवातीन को अपने दिफा के लिए तरबीती प्रोग्राम का मौजूद जिले निजामाबाद जज श्रीमती सुनीता कुंचाला के हाथों आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत 2 मार्च को गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में मुनक़िद होने वाले इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 10,000 खवातीन के साथ ताइक्वांडो के तहत खवातीन को खुद की दिफा के ताल्लुक से आगाही फराहम की जाएगी। लिहाजा 2 मार्च को मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम से खवातीन को इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, निजामाबाद एसीपी एल राजा वेंकट रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर्स रमेश, ताइक्वांडो सेक्रेटरी के मनोज कुमार व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर नौमुंतखबा ईसाई गणेश ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद किया। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर नौमुंतखबा ईसाई गणेश ने मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 यौम से मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए सर पर हेलमेट व बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले 450 मोटरसाइकिल मालिकीन पर जुर्माना आयद किया गया और इसी तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव में 32 अफराद और बगैर नंबर प्लेट के 75 गाड़ियों को जब्त करने के साथ साथ खुले मुकामात पर मेनोशी करने वाले 30 अफराद पर मुकदमा दर्ज करने का इन्होंने इजहार करते हुए मोटरसाइकिल चलाने वालों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए इनकी अपनी गाड़ी से मुताल्लिक़ मुकम्मल दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए महकमे पुलिस का ताउन करने का इजहार किया। सालूरा मंडल के गवर्नमेंट स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। सालूरा मंडल के गवर्नमेंट स्कूल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले साइंस फेयर प्रोग्राम के पेश नज़र तलबा व तालिबात की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के तहत बनाए गए मॉडल्स व मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स के अलावा साइंस के आलात को नुमाइश के लिए रखा गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सालूरा मंडल के गवर्नमेंट स्कूल में मुनक़िदा साइंस फेयर में हिस्सा लेने वाले 150 तलबा की जानिब से डायग्राम्स व मॉडल्स के साथ साथ साइंस के आलात को नुमाइश के लिए रखते हुए साइंसदानों से मुलहक़ा तस्वीर बनाते हुए इनकी तस्वीर से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से तलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने का मौका मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हेड मास्टर राजी मंजू शाह, इंचार्ज HM विजय, असातिज़ा साहिबिन संतोष यादव, जोशना विजय लक्ष्मी, सालूरा मंडल PRTU जनरल सेक्रेटरी G साइलू, स्कूल का अमले के अलावा तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम के इनेकाद के लिए जिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का जिले इंटर एजुकेशन ओहदेदार रघुराज ने किया इजहार। जिले इंटर एजुकेशन ओहदेदार रघुराज ने कहा कि फरवरी 28 से 19 मार्च तक मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम के लिए जिले में 57 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत 16 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, 2 एलिट जूनियर कॉलेज, 2 सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेज, 6 मॉडल जूनियर कॉलेज, 2 अखिलती रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज के अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल को इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने के लिए इस्तेमाल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिले में कुल 35,346 तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। इनमें से साल अव्वल जनरल तलबा की तादाद 14,965 होंगी और 2,399 वोकेशनल तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे और इसी तरह से सेकेंड ईयर के रेगुलर तलबा की तादाद 13,986, प्राइवेट के तौर पर 1,804 तलबा के अलावा साल दुआम वोकेशनल रेगुलर के तौर पर 1,999 तलबा शिरकत करने का इन्होंने इजहार किया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी MP उम्मीदवारों को फतेह दिलाने के कामारेड्डी MLA वेंकटा रमना रेड्डी ने की अपील। विजय संकल्प यात्रा के तहत कृष्णमा क्लस्टर नगर कारमूल पार्लियामेंट के हुदूद में वाक़े कोल्हापुर में मीडिया के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी MP उम्मीदवार को फतेह दिलाते हुए वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी की क़यादत को मुस्तहकम बनाने का इजहार किया। बोधन शहर में वाक़े इंदुर हाई स्कूल में एनुअल डे तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर में वाक़े इंदुर हाई स्कूल में इंतजामिया और तालीमी इदारे के डायरेक्टर के किशोर के ज़ेर एहतमाम 22वीं सालगिरह तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तौर पर इंटरनेशनल लायंस गवर्नर बाबू राव व इजाज़ी मेहमान के तौर पर ज़िले गवर्नर लक्ष्मी अमरनाथ राव, बसवेश्वर राव, MEO नागनाथ श्रीनिवास राव, नरसिम्हा रेड्डी व दीगर ने शिरकत। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर के किशोर MEO नागनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि बोधन शहर में क़याम अमल में लाए गए स्कूल में तालीम हासिल करने वालों ने तमाम शोबेजात में आला मुकाम हासिल करने का इजहार किया। बातज़र तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम तब को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाब होने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के इंतजामिया कोडली लावण्या, कृष्णा राव, सदर मुदरिस रामा राव, सुधा रानी, असातिज़ा साहिबिन की टीम तलबा ने वो इनके वालिदैन ने शिरकत की। 10th क्लास इम्तहानात करीब आने के पेश नज़र तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने की ताकीद। रेंजर मंडल में गवर्नमेंट आदर्श स्कूल के अलावा
कस्तूरबा गांधी व वीरन्ना गुट्टा जिले परिषद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने अचानक मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 10th क्लास के इम्तिहानात करीब आने के पेश नज़र तलबा का निसाब कहां तक मुकम्मल होने के ताल्लुक से असातिज़ा साहिबीन से जानकारी हासिल की। 10th क्लास के तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद अमल में लाते हुए इस क्लासेस में कोई भी तालिब इल्म गैर हाजिर ना होने के ताल्लुक से निगरानी करे और निसाब को मुकम्मल ना करने वाले असातिज़ा साहिबीन गैर हाजिर हुए बगैर निसाब को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। इन्होंने मज़ीद कहा कि 10th क्लास के इम्तिहानात में मंडल में वाक़ हर एक स्कूल से 10/10 GPA आने के ताल्लुक से असातिज़ा साहिबीन को तलबा की हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल एजुकेशन अहदेदार गणेश और मुख्तलिफ स्कूलों के सदर मुदर्रिस बलराम श्यामिला अब्दुलरहमान व दीगर ने शिरकत की। మోడల్ స్కూలు గర్ల్స్ హాస్టల్ తర్వాత కేజీబీవి ఎడపల్లి గవర్నమెంట్ హై స్కూలు క్యాటాపూర్ ఫామ్ గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూలు తర్వాత హై స్కూలు సందర్శించమైంది. నేను అక్కడ ఉన్న 10వ తరగతి పిల్లలతోటి మరి వాళ్ళతో మాట్లాడి మంచిగా వాళ్ళు చదివి మంచి మార్క్స్ రావాలని మనకు అందరికీ మరి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడాను అందరూ యాక్టివ్గా ఉన్నారు. रियासती हुकूमत ने अहल अफराद ख़ानदान के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को लागू करने के लिए एक और इक़दाम उठाया है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक महालक्ष्मी में एक और गारंटी को रूबे अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से जीओ जारी किया गया है। हुकूमत ने पहले ही वाज़े कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ इन लोगों पर लागू होगी जिनके पास राशन कार्ड है, जबकि रियासत भर में 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन मौजूद होने की बिना पर इसमें राशन कार्ड रखने वाले अफराद ख़ानदान की तादाद 49.99 लाख है। वो हाल ही में इन्हें खास अमल में लाए गए प्रजा पालना के तहत दरख्वास्त देने वाले सफ़ेद राशन कार्ड गिरंदों को 500 रुपये में सिलेंडर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से गैस कंपनियों को माहाना सब्सिडी अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से जारी किए गए जियो में वजाहत किया गया। एड़पल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ गर्ल्स गुरुकुला स्कूल में अभिया खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम 25 लाख रुपए की मालियत से तामीर करदा साइंस लैब का बोधन MLA पी राकेश रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ गर्ल्स गुरुकुला स्कूल में अभया खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम 25 लाख रुपए की मालियत से तामीर करदा साइंस लैब का बोधन MLA पी सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बचपन से ही सख्त मेहनत करते हुए आला मुकाम हासिल करने की तलबा को ताकीद की। इन्होंने कहा कि प्राइमरी तालीम पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया और कहा कि गुरुकुला स्कूल में ज़ायद कमरे जमात की तामीर के अलावा टॉयलेट के लिए 60 लाख फंड्स मुख्तस करने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र अभया फाउंडेशन के बानी एस बारा चंदर ने कहा कि मुसाबिकती दुनिया में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसके तहत 10 इलाकों में क़ियाम अमल में लाए गए गुरुकुला स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP नायब सदर रजिता यादव, प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी, विंडो सदर नारायणा चौधरी, कायदीन बी राम मोहन व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गरीब अवाम की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश कर रहे हैं। भीमगल में BJP विजय संकल्प यात्रा से कौमी नायब सदर व साबिक़ा वज़ीर DK अरुणा MP DRV अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। भीमगल शहर में BJP विजय संकल्प यात्रा की आमद हो चुकी है। इस पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गरीब अवाम की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर MP DRV ने कहा कि 10 करोड़ रुपए की मालियत पर मबनी उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिया गया है और निज़ामाबाद पार्लियामेंट के हदूद में 1000 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती कामों को जारी रखने का इजहार किया। जनता पार्टी లేదు ఆ స్థాయి దాటిపోయింది. మా జీవన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్ట మా అంకుల్ అరవింద్ ఏం చేసిండు అని అడిగినట్ట. నేను చెప్తా, కాంగ్రెస్ చరిత్ర తెలుసుకొని మాట్లాడాలన్నాడు. ఇక కాంగ్రెస్ చరిత్ర ఇప్పటిదాకా రాకేష్ రెడ్డి చెప్పి, జీవన్ రెడ్డి అంకుల్ కాంగ్రెస్ చరిత్ర దేశద్రోహ చరిత్ర. आलूर मंडल के कलेड़ा तांडे में आर्मूर MLA पी राकेश रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। आलूर मंडल कलेड़ा देहात के मुस्तक़बिल वाक़े कलेड़ा टांडे में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले संत सेवालाल महाराज जयंती तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आर्मूर MLA पी राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर टांडे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की जानिब से आर्मूर MLA पी राकेश रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल
किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि तांडे की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हमेशा दस्तयाब में रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, साबिक़ा ZPTC लता, पीर सिंह, गंगोली, संतोष, MRO, MPDO व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ అంటే కొడంగల్, కొడంగల్ అంటే తెలంగాణ. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే ఈ ప్రభుత్వ నేత, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసిన అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారికి విన్నపం. ఉత్తర తెలంగాణ వాసులమైన మేము మారుమూల జిల్లా నిజామాబాద్ అభివృద్ధి చెందిన తండలు ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి మా వైపు చూడండి. ఖమ్మంలో ఉన్న తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కావచ్చు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కావచ్చు, భట్టు విక్రమార్క గారు కావచ్చు, దొరికిన వాళ్ళు దొరికినంత మీ జిల్లాలకు తీసుకుపోతున్నారు. మా తండాల అభివృద్ధి చెందలేదు. మా తండాలకు ఊళ్ళే లేవు, రోడ్లు లేవు, స్కూళ్ళు లేవు. ఇదే అసెంబ్లీ అయిపోయింది. 2,000 మంది ఆడబిడ్డలు మురికి గుంటల పక్కన అద్దె బిల్డింగ్ల 40 మంది పట్టే బిడ్డలు, ఒక్క బెడ్రూమ్ 40 మంది కనబడతలేదా? అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు 1432 కోట్లు ఒక్క గంటలు తీసుకుపోయిన వాళ్ళ అసొమ్ము. डिचपली PACS चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले रामचंद्र गौड ने किसानों को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। डिचपली मंडल में वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संगम सदर के ओहदे के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। वो कुछ नागुज़ेर वजूहात के बाइस साबिक़ा चेयरमैन रजवाड़ा जयपाल ओहदे से मुस्तफ़ा होने की वजह से आज नए चेयरमैन के तौर पर रामचंद्र गौड व वाइस चेयरमैन की हैसियत से कुमारी चिन्ना गंगाराम को सोसाइटी डायरेक्टर्स की जानिब से बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके तहत रामचंद्र गौड ने सोसाइटी अराकिन के डायरेक्टर्स की मौजूदगी में ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर अराकिन व डायरेक्टर्स व कांग्रेस पार्टी कायदीन P श्रीनिवास के गंगाधर की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौमुंतखबा PACS चेयरमैन रामचंद्र गौड ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुझ पर एतमाद होने की वजह से ही डायरेक्टर्स किसान व रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की जानिब से PACS चेयरमैन के ओहदे पर फाइज करने के बाइस इन्होंने दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेकात अमल में लाए जाने वाले सेवालाल जयंती में होने वाले बहस व मुबाहिसे से मुकामी रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी स्टेज से चले गए। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में आज सेवालाल जयंती तकारीब में अमल में लाने के पेश नज़र क़ियाम अमल में लाने वाले प्रोग्राम में किसी भी पार्टी के कायदीन को मदऊ करने के मौके पर तालियों की गुन से इस्तकबाल ना किया जाए, वो पार्टी के तालों से इजहार ख्याल ना करने के तालों से बंजारा कायदीन की जानिब से स्टेज से कबल ऐलान किया गया। बातज़ा ख़ास तौर पर इनेकात अमल में लाए जाने वाले भोग भंडार प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर पहले मरहले के तौर पर जलसे आम सदर के तौर पर मुकामी रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को स्टेज पर मदऊ करने के बाद बांसवाड़ा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जिला रेड्डी के साबिक़ा रुकन असम्बली एनुकू रविंदर रेड्डी को स्टेज पर मदऊ करने के दौरान हल्के की तरक्की के लिए हमेशा दस्तयाब में रहने वाले कायद के तौर पर ए रविंदर रेड्डी की तारीफ करते हुए मदऊ किया गया। तब बियादत से ताल्लुक़ रखने वाले बंजारा कायदीन की जानिब से इतराज़ करने की वजह से जलसे आम में थोड़ी देर के लिए होने वाले बहस व मुबाहिसे से रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के साथियाँ स्टेज से बाहर चले गए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मज़ीद 2 गारंटीज पर अमलावरी के लिए CM रेवंत रेड्डी ने जारी किए अहकामात व रियासत के मुस्तहिक घरानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी व 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स की फराहमी का हैदराबाद सेक्रेटेरिएट से किया आगाज़। मदरसा अरबिया दारुल कंदाकुर्ती के तालिब इल्म ने एक ही नशिस्त में सुनाई मुकम्मल खुरान। मदरसे की जानिब से की गई नौजवान हाफिज की हिम्मत अफजाई। मोदी हुकूमत की जानिब से गुरबा की तरक्की के लिए फराहम की जाने वाली स्कीमात की शौर बेदारी की जाए। विजय संकल्प यात्रा से बीजेपी कौमी नायब सदर DK अरुण को MP अरविंद का खिताब। दारुल बिचकोंदा में 8 तलबा का तकमील हिफ्ज़, 11 साल में 32 तलबा का हिफ्ज़ होना मिसाल खिदमात की अलामत।
किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए खदमात अंजाम दिए जाए। डिचपल्ली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। PACS चेयरमैन की हैसियत से रामचंद्र गायकवाड़ मुंतखब। जिले में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, 1 मिनट की भी ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त। DIEO का इजहार। तलबा मेहनत और मशक्क़त करते हुए आला तालीम हासिल करें। पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक़िदा टाइकोंडो तरबियती तक़रीब से जिले जा सुनीता कुंचाला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।